नमस्कार मेरी प्यारे भाइयों बहनों मित्रों. The coronavirus in India, it has doubled the burden for work from home and work for home for women in India primarily. घर से काम और घर का काम. Over the past many months, many women they have been fighting to secure, mostly in vain, and fighting from the society where they live in for the entry of their domestic workers. They don't say, they have written in many WhatsApp groups that I don't agree with this. I will get my maid into my home. This is my work from home. It is not a holiday. Without a maid, it is impossible to work, to cook, to clean, and to take care of the kids. So, in that background, we would like to discuss the gender dimension during the lockdown and now, the unlockdown period. And in most of the Indian households, they do not have equal sharing of household work. And also the issue of poorly brought up Indian men during and its impact during the COVID times. Friends, today we have invited Dr. Pramila Batra. She is a prominent figure in the field of psychology, not only in India, but she is the scholar of international standing. She has been a dean of the Faculty of Social Sciences and a head of department psychology of MGU Rohtak University. Her areas of specialization are health, environment, and counseling. So here I welcome Dr. Pramila Batra on the board to be very kind enough. She has consented to have a talk with us on this session. Pramila ji, जैसे मैंने अभी आपको बताया, like the issue of how Indian men, they are not in the habit of actually working when you compare to certain surveys which have happened, international surveys, like men abroad, they actually help their wives and their families in the household work. And especially now during the COVID times, all the burden is coming over to women. Now women and men are very slowly coming to this fact कि उनको भी काम करना आना चाहिए. So there are gender dimensions to it. आप क्या सोचती हैं? First of all, I just want to wish a very good day to all of the viewers and Preeti you yourself. मैं आपकी बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं स्टेट वुमेन कमीशन हरियाणा से, मैं भी हरियाणवी हूँ, तो वहां पर मुझे हरियाणा की महिलाओं के साथ बात करने का मौका दिया. प्रीति जी, आपने सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ. आपका आभार करते हैं. Then I come to the issue. Thank you. Then I come to the issue which you have raised. Yes, I happen to agree with you. I happen to agree with you that in India, the men are learning to share the household, but in a very slow manner. And even there, they are learning it, that patriarch feeling is still there. So that mindset is not changing, you know. So there is one thing, ki I'm helping you in the kitchen, I'm giving you some food, or I'm helping you to bring something from outside. So that does not reduce the tension of the women, even where the men have started working. So I happen to agree with you for all these issues. Issue is not of the discrimination, issue is of the gender roles. कि ये महिला की ही भूमिका है, केवल घर का काम करना नहीं, घर में बच्चों को पालना पोषना. आज भी मेरे देश में फादर का रोल has not been accepted the way it should have been accepted. Play a great role in the rearing. So the result is this कि yes, women is overburdened. अब तो फिर देखिए everybody is at home. Men is also not used to sitting at home. सास ससुर है तो उनको भी ये आदत नहीं है कि बहू सारे दिन घर बैठती है. In majority of the cases जहाँ जहाँ women working है, बच्चे हैं, they are also not used to sitting at home. गरीब है तो घर के बाहर खेलने की आदत है, अमीर है तो पार्टी कल्चर की आदत है. So this is a change to adapt. Now the problem is women is always a scapegoat in the family. That culture has not changed throughout the world. So ultimately what happens, the children will come, they will take out their frustration on mom. Husband will come, he or she will take out. Mother-in-law used to go to the temple, अब नहीं जा सकती. ससुर जी सैर चले जाते थे, अब थोड़ा सा मुश्किल है.
क्योंकि वो बुजुर्ग है। सब कहते हैं कि 60 साल के बाद कोमॉर्बिडिटी है, आपको नहीं जाना है, इवन इन दिस अनलॉकडाउन फेज, which is true as well. दैट मींस बड़ी इश्यूज हो गए हैं। एक तो वो खुद अडेप्ट नहीं कर पा रही, ऊपर से वो सब जो एडेप्टेशन को नहीं कर पा रहे हैं, दे कम एंड दे थ्रो। बच्चा डिमांडिंग है, बच्चे को बाहर नहीं जाना है, so he looks at the mother more than he looks at the father for playing. The husband, he needs tea after every 1 hour. Yes. He needs another thing after every hour. और So the mother has to do, वो even if she is on her own laptop. हाँ, अगर वो अपने लैपटॉप पे काम भी कर रही तब भी उसको ये सारा कुछ करना है ना। हार्डली कहीं दिखेगा कि आदमी ये सोचे कि अच्छा ये काम कर रही, मैं चाय बनाता हूँ और उसको दे देता हूँ, तो उसके अपने इश्यूज हो गए, सारी फैमिली के इश्यूज हो गए। इट्स ओके है, हमने मान लिया। इन्हें रिजॉल्व कैसे किया? रिजॉल्व करने से पहले हमें ये समझना है कि क्या ये इश्यूज लॉकडाउन के कारण। एज अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम सॉरी, I disagree. It is not because of lockdown. This is a problem which was there already. It was existing. It has simply triggered because of the lockdown. मेरी coping strategy पहले भी गलत थी और वो avoidance की थी। मैं बाहर चली जाती थी या मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते थे, थोड़ी देर के लिए मुझे चैन मिल जाता था, मम्मा बाहर चली जाती थी, बच्चे खेलने चले जाते थे, किसी सहेली के घर भेज देती थी, किसी दोस्त के घर। This is all avoidance. We never tried to have those basic issues which were responsible for the lack of understanding between the couple and the partner. So how do you hold the lockdown responsible? आप इसको opportunity लीजिए। तो पहले जैसे Take it as an opportunity. 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, अब ये सोचना चाहिए एक फैमिली एज अ यूनिट को। हाँ, जो भी कोई बात नहीं जी ठीक है, 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। That's why I'm saying that let us start taking it as an opportunity. yes. वो बातें जो हमने पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठकर नहीं की, अपने दिल का वो हिस्सा नहीं दिखाया और उसके दिल का वो हिस्सा नहीं देखा, जिससे हम दोनों आज भी अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी राह चल रही थी, वो अपने राह चल रहे थे। That's what is the couple. This is the time. Because the survival of the fittest सुना है ना हमने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का स्टोरी। अब चल रहा था, अब नहीं चल रहा, अब मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इससे ज्यादा नहीं भाग सकती। सो इट्स ट्रू अबाउट द हस्बैंड, मैं अपनी समस्या से दूर नहीं भाग सकता, आइए बैठ के बात करें जी। और अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, दिल से दिल की राह यदि नहीं मिलती, तो भूमिका से भूमिका की राह मिलाइए। हम शुरू कर सकते हैं, हम शुरू कर सकते हैं कि ऑलराइट, हमें पता है कि मुझे 12 घंटे काम करना है, उस 12 घंटे के काम में मैं अकेली बच्चों को हैंडल करना और खाना पकाना इतना सब कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं रोज रात 12 बजे सोऊं, 4 बजे उठ करके खाना बनाऊं। तो आप ही बताइए कि आप क्या क्या मेरे लिए कर पाएंगे, क्या क्या आप शेयर कर सकते हैं। ये तो करनी है, नौकरी तो करनी है, देखो नहीं तो आगे हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जो हम प्यार से करते हैं। पता गलती कहाँ करती है हम महिलाएं। मैं आज महिलाओं पर फोकस ज्यादा करूंगी, मैं सीधे धमकी दूंगी, देख लो फिर नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। या मैं अकड़ दिखाऊंगी और कहूंगी कि मैं भी तो, देख लो फिर अकेले तुमसे घर नहीं चलता, फिर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मुझे इतने पैसे दे देना। दैट्स वेयर द वुमेन इज रॉन्ग। इस बात को मैं आराम से भी तो कह सकती हूँ। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग, यू नो, व्हिच वी हैव टू लर्न। मैं ये भी तो कह सकती हूँ, कम्युनिकेट इज इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाए वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अकड़ के बोलूंगी, so that will not be a fruitful situation. And coming to the related topic during this period is that the financing and the budget during the present time. ये विजडम तो मेरी भी है ना प्रीति जी, कि जब मेरे को पता है कि ऐसी जगह पर जन्म लिया है जहाँ पर पेट्रियार्क रन करती है जी, पेट्रियार्क को हैंडल मैंने कैसे करना है ये मुझे भी तो पता होना चाहिए, है ना। जहाँ पर पुरुष अपने पौरुष के बोझ से दबाए, ये मैं मानती हूँ, ये भाषा मेरी अपनी है। दिस इज माय ओन सेंटेंस आई यूज्ड इन सम वेबिनार रिसेंटली। जहां पुरुष अपने ही पौरुष के बोझ से दबा है, वहां मैं उसके पौरुष को चैलेंज ही क्यों करूं। इफ आई से इट लाइक दिस, सुनो जी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तबीयत खराब होने लगी है, छुट्टी ज्यादा करूंगी
और फिर आपको पता है नौकरी तो छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है ना मेरे लिए। अगर नौकरी छोड़ूंगी तो बच्चे देखो ना कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अब ये सपोज इसका एडमिशन ऐसी जगह हो गया, हमें फीस ज्यादा भरनी पड़ी, तो कैसे करेंगे? सो लेट अस पुट द थिंग्स a bit into the court of the ball of our husband and the family as well. Yes. डेलीगेशन भी तो हमें आनी चाहिए, मिलकर सलाह करना, है ना? सो लेट द हस्बैंड रियलाइज कि यस इसकी नौकरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ओके मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। उससे वो अपने मन से मदद करेगा। जिस दिन वो मन से मदद करेगा उस दिन उसे मदद करने की तकलीफ नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई से बिल्कुल बिल्कुल आपकी कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना है। और फिर अपने लिए टाइम निकालना जो होता है वो बड़ा जरूरी होता है। महिलाओं को आदत थी, they used to go and attend the kitties, and if they were not working, they were working, then they were going out and they were sitting in their office. Even if you go to the rural areas, you know, people are sitting outside and they are talking to each other. If you talk of the house wives, वो 11 बजे 12 बजे they have their neighbors, they sit together and have tea. So everybody used to those kinds of things ना. So सभी का routine change हुआ है ना. You have to find out some time for yourself. Self grooming for the women is the most important thing. So पहली बात तो मैंने ये कहा कि अपनी अपॉर्चुनिटी बना के नजदीकी बढ़ाइए, अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल वे में रोल्स की सीमा रेखाएं तय कीजिए। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है, that is to learn to take care of yourself. Find out some time for yourself. अगर मैं थोड़ा सा टाइम कुछ पल अपने लिए चुरा लेती हूँ, उनको मैं अपने लिए यूज करती हूँ, and I work on my own self grooming, that gives me a sense of satisfaction. जितना मैं satisfied feel करूंगी, उतना when my children come and put their demand, my family comes and puts their demand, I will not get irritated. Exactly. क्योंकि मैं rejuvenated हूँ, मैं peace, I'm at peace with me, I'm calm, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। सेम बात यदि एक व्यक्ति को जाकर आप कहते हो जब वो खुश होता है, और दूसरे को जाकर के कहते हो when the person is not in a good mood, the reactions vary. That you also have experienced, and all my viewers who are listening to us, they've all experienced. That's why it is very important. आज की जो यंगर जनरेशन है ना प्रीति जी, अनफॉर्चुनेटली वो सेल्फ ग्रूमिंग के नाम पर सेल्फिश हो रही है, वो भी गलत है। और जो हमारे वाली जनरेशन थी, हम क्या करते थे, नहाने के वक्त भी बस 5 डिब्बे पानी के डाले और हमारा स्नान पूरा हो जाता था। Neither that was right nor this is right. We have to be moderate. So we have to learn to be at peace. Therefore, we have to look for an activity which we like. Right. Do that so that you can bring happiness and peace into your own mind. That is what is the strength for you to bear with the hostility, bear with the demands, bear with the overburden. Either it is mental or it is health or it is your physical health. तो नियामत बना लीजिए इस टाइम को, ये वक्त नहीं लौटेगा। जी जी, I was just wanting to also talk about on the issue of finances and budget, where the women, they are considered to be the major spinners in running the household. और आज के परिवेश में बहुत लोगों के जॉब कट्स, सैलरी कट्स हो रहे हैं, जॉब जा रही हैं। सो ऐसे समय में महिलाएं जो कि उनको अपनी सुगढ़ता के लिए जानी जाती हैं, ऐसे समय में जब हमारे लिमिटेड और साधन हो गए हैं, लिमिटेड आर्थिक तंगी में किस प्रकार से घर को बेहतर तरीके से चलाया जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखो यहाँ फिर वही समस्या आ जाती है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेन in the patriarch society? Many a times in many of families even today, the men do not allow or the housewives to take a control of the finances issues. In spite of that, the truth is that if the women doesn't put a control, probably no family could have been able to run itself nicely within that budget. But naturally, so yes. Therefore, first thing which women has to learn about herself is that she should know how to take her rights of the financial management. True. We have to give space to our husbands. We have to give respect to them. यहाँ से दिल से, very important. Yes. श्रद्धा भी है, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट करनी सीखो, अपने अधिकार लेना सीखो। ये पहली चीज है, उसके बिना हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करते। हाँ, करना कैसे?
First thing which I would like to tell everyone कि जो थोड़ा सा भी lower socio-economic status को belong करते हैं ना, they think that these rich people do not have any problems regarding the finances. That is the perception. It's not that. Right. It is that's the perception, but this is a misperception. This is a wrong notion. I'll prove that. See, the richer I am, the different becomes my style. Exactly. If I'm rich enough, I like to go out and sit in a 3-star. If I'm more than that, then I want to go and party in a 5-star. Very So true. similarly, leisure management, nobody knows. Now the children of the rich people, they are sitting at home. Mobile is the only source. Exactly. Working on that throughout. Online shopping they are used to. और तो कुछ मिल नहीं रहा है to get satisfied and to rejuvenate themselves. तो क्या करते हैं? Online shopping अभी भी खुली है. So they just want to buy the things. Right. They have been given the cards. They use it. They don't even ask their parents. So the rich people, they have their own problems. Yes. This is a misuse of funds. Yes. But they are not able to control. I have so many cases, so many cases in which the girls studying in 10th of the rich people, now they are asking for a laptop worth 1.5 lakhs or a mobile which is around 1 lakh or a 90,000 or that. पूछोगे क्यों? वो इसमें से तो कुछ होता नहीं है. मेरे पास बाहर तो मुझे जाना नहीं होता है. मुझे घर पे करना है. मुझे फोटोग्राफी करनी है. I want a phone with a better camera. Yes. And the parents, they don't have degree of control. तो अभी आज तक बनाया नहीं हमने. So first of all, let us understand that everyone has to manage the funds. तरीका क्या है इसका? इसका तरीका ये है कि we should now sit and talk with our children that during these days, how much of the proportionate cut is there on my salary, and just this much I have the saving. I will not be able to spend more than this amount. बच्चों को involve कीजिए. Yes. Husband must be involved into that, क्योंकि पता है आपको ये budgeting करने के लिए maximum instruction भी men देता है women को. Exactly. और करने भी वो नहीं देता. इतने में काम चलाओ. Everything is there. Yes, instructions देता है लेकिन करने नहीं देता. कैसे? किसी भी घर में आप नोट कर लीजिएगा. अगेन अ कॉमन फीचर रिच और पुअर. एक किस्सा सुनाती हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है जी. देयर इज अ लेडी जो बर्तन साफ करती है और उसका हस्बैंड एक लेबरर है. दोनों ने बहुत मेहनत की. एक बेटा ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट द इंजीनियरिंग है. अब जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है उसका टेस्ट बिकॉज ऑफ द पीयर इम्पैक्ट डिफर तो कर ही जाएगा. उसको किसी फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया एक डॉग. द पेरेंट्स सेड कि ये डॉग तो मुश्किल है हमारे लिए मेंटेन करना, बट बोथ ऑफ द चिल्ड्रन दे वांटेड टू मेंटेन द डॉग. अब डॉग जरा सा बीमार हुआ. द बॉय टुक द डॉग टू द डॉक्टर. ही सेड कि इसको इंजेक्शन लगवा दो. वो 350 का इंजेक्शन उसको लगवाया. जब घर आया तो माँ ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, 350 रुपए का टीका तुम लगवा आए हो. मैं फलां के घर में काम करती हूँ, मैं टीका ला देती. तो फादर कहते हैं अच्छा तुम रहने दो ना. दैट सेम फादर जो बाद में माँ को कहता है कि मैंने इतने पैसे दिए, इतने में ही तूने गुजारा करना है, he tells the child हाँ कोई बात नहीं, it is okay. Now it is the skill of the women to understand that. बुद्धि का प्रयोग करना है और इसको कैसे हैंडल करना है. उस महिला को वहीं उसी समय पति को कहना चाहिए हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अच्छा किया, ये डॉग भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने इतने पैसे दिए थे ना, उसमें से इतने बचे हैं, थोड़े फिर आपको और तो देने पड़ेंगे. और यहाँ बच्चे के कान खड़े हो जाएंगे जी. है ना. अदरवाइज बच्चा गलतफहमी में रहता है, माँ के साथ लड़ाई करता है. तो ऐसी स्किल हम लोगों को सीखनी है. Very very useful. So थैंक यू सो मच. लेकिन थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा. देखो गीता में भी कहा है बुद्धि क्या है. बुद्धि वो है जो सही गलत, भय अभय, डर निडरता, इन सब चीजों में डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, इसमें अंतर कर सकती है. मनोविज्ञान भी कहता है बुद्धि वो जो हमारे को अडैप्ट करवा सकती है. बुद्धि का प्रयोग तो करना पड़ेगा. आई एम सॉरी. एंड द लास्ट टिप व्हिच आई विल लाइक टू गिव इज
सेविंग को निकालने से हम बड़ा घबरा रहे हैं। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। नहीं आएगा दोबारा, आपको पता है ना। हाँ, वो कहते हैं कि ये तो बचा के फलाने काम के लिए रखा हुआ है, अगर मैं इसमें से निकाल लूंगी तो मेरा काम कैसे चलेगा। genuine issue, no problem, but I want the viewers to learn to discriminate between the worry and the over worry, right? See, jaan hai to jahan hai. Then if we make our present, then only we'll be able to make our future. Yes, it's been said very well in English. Past is a history, future is a mystery, only it is the present which is a gift. भगवान कृष्ण का उपदेश याद कर लो ना। अगर हम कहावतों को नहीं मानते हैं तो चलिए हम गीता को तो मानते हैं ना सब। तो भगवान जी ने कितने ही श्लोकों में गीता में यही कहा है, प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। अर्जुन को उन्होंने गीता में प्रथम संदेश ही यही दिया था। इवन कर्म की बात की तब भी वर्तमान के बारे में उन्होंने कहा। तो यदि मैं अपना वर्तमान बना लूंगी ना, तभी तो मैं जिंदा रहूंगी अपने भविष्य के लिए, फिर मैं भविष्य को भी बना लूंगी, है ना। मैं कहती होती हूँ वर्तमान में जो जीता है वह सहज पा जाता है। ये मेरा मानना है, वर्तमान में जो जीता है वह सहज पा जाता है। भूत भविष्य के चक्कर में जो रहता है वह नित अवसर खो देता है। नित इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नित अवसर, डेली का जो है ना, वो नित अवसर खोकर पीछे पछताता ही रह जाता है। तो हम तो सारी जिंदगी चिंता में रहेंगे, ऐसे तो बात नहीं। चिंता है तो भूल जाइए, हम जीवित रहेंगे ऐसा मान प्रभु, उस पर विश्वास रखो। यस, उन्होंने हमें दिया, वो हमें आगे भी देंगे। ये नहीं मैं सोच सकती कि भविष्य के बचाने के लिए आज मैं अपने बच्चे को भूखा रखूं, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाए और फिर कहीं ना कहीं वो बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी मैं, बच्चे, मेरे सास ससुर या मेरा पति, आई मीन एवरीबडी इन द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। So we can't put them to a risk of getting COVID, you know. Yes. So that's how it is. So we don't have to be afraid of finishing up our saving. देगा वही, हमेशा उसने दिया, आगे भी वो देगा, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए। Because I think it's a very important thing which you have brought out. Because what we think is that कि हम 30 days के लिए अपने पास पैसे रखें, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, हमको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हम जिंदे रहेंगे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। But the thing is that anxiety और जो stress, इसको जो contain कैसे किया जाए? हाँ, इसको कंटेन करने से पहले एक छोटी सी टिप और दे दूं महिलाओं के लिए ऑन द बजट मैनेजमेंट। दैट इज कि वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है ना, हमें उनको बिजी रखना है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज में लगा सकती है, नया प्रोफेशन शुरू कर सकती है। छोटे छोटे कुछ महिलाओं ने किया, जैसे घर से केक बनाना। हर स्तर के अलग अलग काम है। किसी ने मास्क बनाने शुरू कर दिए। अच्छा बेटा, तुम अब घर होती हो, तुम मेरे लिए खाना आज बना दो कि नहीं बना? अच्छा मैंने ये बनाया, तुम थोड़ी सी इसके ऊपर वो कर दोगी। लड़के भी कर सकते हैं ऐसा काम। ये हम महिलाओं को ही सीखना है कि लड़के लड़कियों को एक जैसे कामों में हम इन्वॉल्व करना सीखें। सो दैट इज व्हाट विल आल्सो हेल्प यू इन द फाइनेंशियल। अब आपका सवाल जो आपने किया था, सॉरी, you're talking about कि घर का काम and everything. So it is very obvious that the women, they'll get into a lot of anxiety and stress. Not only them, but the children and the elderly. So how to really, as family, as a unit, they should live a very healthy, happy, and a very, fruitful life in these times. That's what I want to do. देखो प्रीति, इसमें मैं 2-4 टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहली टिप मैं एज अ यूनिट की देना चाहती हूँ। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द women, particularly the women in our generations and even the younger ones, have stopped believing and have stopped trusting elderly people in their families. This is very unfortunate. Kaise? Like when we started working and we started going out, again I will tell you one of my cases. One lady, really she was, it's around 20 years back, one of my initial very cases. She says कि मैं जब जॉब से आई तो मैंने देखा कि बच्चे बाथरूम में बैठे हुए खेले थे और मम्मी जी को इस चीज की फिक्र नहीं थी। उनको उन्होंने वहां चादर बिछा करके दे दी। हम सोचते नहीं है, हम पैरानॉइड हो रहे हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि बच्चे अंदर टिक नहीं रहे थे और धूप में खेल रहे थे, तो किसी तरह से क्या पता सासू माँ ने बहला फुसला के उनको उस बाथरूम के अंदर बिठाया हो कि बाबा कुछ तो है और पंखा लगा करके दे दिया, है ना? We have lost the trust. Yes. And because of that we have started getting angry. We don't talk. पहले हमको वो ट्रस्ट डेवलप करना है अपने बड़ों में। फिर कुछ लोग कहते हैं
अगर बड़ों के साथ बच्चे ज्यादा रहेंगे ना, हमसे खो जाएंगे, बच्चे माँ से ज्यादा प्यार दादी को करने लगेंगे। ये सारे स्टीरियोटिपिकल मिथ्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, we have to come out of it। तो पढ़ लिख गए हैं, ये गलत है। मैं मदर हूं ना, अगर मैंने संस्कार अच्छा दिया है तो मुझे डर किस चीज का? अगर मुझे दादी की कोई बात अच्छी भी नहीं लगती तो मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे ये आना चाहिए कि दादी के उस इम्पैक्ट को मैं कैसे अंडू करूं, दादा के उस इम्पैक्ट को मैं कैसे अंडू करूं। मेजर सोर्स संस्कार देने का मैं हूं, मुझे वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, मुझे वो स्किल सीखनी है, जैसी छोटी छोटी मैंने आपको बताई है। इट्स वेरी इजी। सपोज एक लेडी मेरे को आकर के कहती है, ये बड़ी फ्रीक्वेंट कंप्लेंट आती है, दादाजी ले जाते हैं इनको घुमाने के लिए, फिर कुछ लाते हैं, ठीक है, मूल से सूद प्यारा, we've been listening this right from the day we are born, fine, it's okay, but if you want that your child should not be taking one packet of chips etc etc, आपके पास 110 methods हैं, बुद्धि तो प्रयोग करो ना, दी हुई है ना भगवान जी ने, उसको गुस्से में क्यों व्यक्त कर रही हो? You can always sit and talk to the father-in-law। वो नहीं करना चाहते तो आप अपने बेबी से कहेंगे, बाबू yesterday also you are having chips, तुमको पता है ना, you start coughing, and फिर तुम रात में सोए नहीं, कल भी नहीं सोए ना, प्लीज इसको रख दो, जब ठीक हो जाओगे तो ले लेना, दादाजी भी सुन रहे हैं। And the child will start saying no। मैंने भी तो अपने बच्चे को स्किल सिखानी है ना of saying no। See, things are very simple, Preeti. We don't have to complicate them in the life. This is my first tip, which I want my women to learn. इसके अलावा उसके ऊपर ट्रस्ट करें, उन पर ट्रस्ट करें, लेट गो करना बड़ा जरूरी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। घर है, बातें होती रहती हैं, इट्स ओके, लेट गो, हुआ खत्म करो, उसको चिपके रहेंगे, you are spoiling your own mental health। Maybe your husband, your child, your mama, I mean mom-in-law, they don't even know that कि तुमको कोई बात चुप गई है, तुमको तो रात को नींद नहीं आ रही है, वो सोच सोच के हो गया ना। हम भी तो बड़े हैं, बच्चों को कह देते हैं, क्या मैं कभी अपने बच्चे को गुस्से से भला बुरा कहना या डांटना नहीं करती? तो आज अगर माँ ने मुझे कह दिया तो that attitude। लोग कहते हैं कि सास माँ बन नहीं सकती। मैंने एक कविता लिखी थी, समय नहीं है, सुनाऊंगी नहीं, मैं ये कहती हूँ, अरे मैं बहू रानी को कहती हूँ कि एक हाथ तू भी बढ़ा कर तो देख। ये काहे का कंपटीशन है कि मम्मा पहले मुझ पर प्यार शॉवर करे, मैं भी तो पहले रिस्पेक्ट शॉवर कर सकती थी। वेरी नाइस। ये स्किल मुझे भी तो आना चाहिए था। इज इट अ कंपटीशन? इट्स अ फैमिली। यस, इट्स अ फैमिली माय डियर, इट्स अ फैमिली। एंड 60 नेशंस में स्टडी हुई है जिसमें ये कहा है कि वेलबींग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी फैमिली। यस, 60 नेशंस हैव प्रूव्ड इट। 6 aspects of well-being, the most important is the family well-being, our as a unit, है ना? तो बाकी मैंने आपको कहा पर्सनल लेवल पे इग्नोर करना सीखिए। I want to say that when I talk of ignorance or ignoring someone, I don't mean कि you ignore your husband, I don't mean you ignore your mother-in-law, you ignore your father-in-law, no, pay full attention to them but ignore what they said in an anger। Yes, that is important because वही चीजों को सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फॉरगिवनेस सबसे बड़ी बात है। अगेन हिंदू कल्चर की बात है ना? अच्छा, हम अपने कल्चर को नहीं मानते, बट सेलिगमैन इज मैं बारी बारी उसका रेफरेंस देती हूँ बिकॉज सेलिगमैन हैज टॉक्ड ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन आवर कल्चर। एंड वो कहता है forgiveness is a beautiful virtue, humility is a beautiful virtue। एक हाथ मैं भी तो बढ़ा कर देखूं, है ना? अगर एक हाथ में बढ़ा रही हूँ, I'm just, what am I? I'm being humble। Yes, and other than that, one more thing, क्या लड़की said acceptance as the way you yes, right? So unconditional, please accept you the way you are, I accept you the way you are, so things become very comfortable। So when friction के कम chances रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिना स्पेस के जीवन नहीं चलता। मुझे स्पेस चाहिए ना, तो मुझे भी तो मम्मा जी को स्पेस देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। It's a mutual relationship। My mother-in-law also needs a space। जी, है ना? और आई थिंक भारतीय संस्कृति में भी, सनातन धर्म में भी यही प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। उनको बस हमारे को एक ब्रशअप करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और अपनाने की जरूरत है। और आई थिंक क्योंकि हम लोग सारे एज अ फैमिली हम रह रहे हैं 24/7 एक दूसरे के साथ, तो इट इज द टाइम टू रियली
actually make it a practical exercise each hour of the day. कि मैंने क्या किया, मेरा स्वभाव कैसा रहा, मैंने कैसी बात की, and then to improve on it day by day basis, hour by hour basis. That's what I really feel. So, Pramila ji, it's very nice talking with you. I really want you to give an important one message from your side to the women in India in general and women in our state of Haryana in particular. So, what would you like to say? Yeah, for women of Haryana, जो गांव और शहर दोनों जगह की women को applicable होगा, मैं वो बात कहना चाहती हूँ. मैं इसे हिंदी में कहना चाहती हूँ. बिल्कुल. मैंने अपनी किताब में लिखा है. पहले ग्रैटिट्यूड, जो मेरी गांव की बहनें सुन रही है, ग्रैटिट्यूड का मतलब है थैंकफुल होना, आभारी महसूस करना. स्माइल आती है चेहरे पर, जैसे ही स्माइल आती है मेरे सारे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि मुझे अंदर तक खुश कर देते हैं. Yes. अब ग्रैटिट्यूड किसका? अपनी मदर इन लॉ का. केवल एक ग्रैटिट्यूड मांग रही हूँ. मैंने अपनी किताब में लिखा है, अचानक एक रात मैं 4 फेरे या 7 फेरे अग्नि के चारों तरफ एक व्यक्ति के साथ गठबंधन में लेती हूँ और उस माँ का वो बेटा रातों रात मेरा हो जाता है. कितनी धन्य है वो माँ आज जो मेरी रक्षा करता है, जिसका साथ मेरे जीवन का गठबंधन हुआ है, उसे बनाने वाली. क्या ये काफी नहीं है प्रीति टू बी थैंकफुल टू माय मदर इन लॉ? Yes. I can never. I am in fact. I can never repay. I can never repay. You are making me overwhelmed. I can cry. मेरी सासू माँ अब नहीं है. चलते फिरते मैं उनको नमस्ते करती हूँ, उनकी फोटो आगे लगी है, और चलते फिरते मैं उनको थैंकफुलनेस मेरे मन में रहती है, मैं खुश रहती हूँ. आई एम श्योर दिस इज द ओनली टिप. और मैं उनको और प्यार करना सीखूंगी आपसे. थैंक यू. थैंक यू. नमस्ते. थैंक यू. आपने मेरी बात को सुना. बहुत बहुत धन्यवाद. For your such inspiring thoughts and words and everything. It means a lot to us, and I'm sure मुझे इतना आपने प्रभावित किया इतने कम समय में. I'm sure हमारे जो प्रदेश की महिलाएं हैं, जो महिलाएं इनको सुन रही हैं, बच्चियां सुन रही हैं, अपने आगे वाले जीवन में जरूर कुछ ना कुछ इस कॉन्वर्सेशन से, इस संवाद से हम लोग लेकर जाएंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी. You have a very good, एवं life ahead. Thank you so much. नमस्कार.